آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کورنگی ناصر جم کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان جہاں بحق ہو گیا۔ مقتول پرانے جوتے فروخت کرتا تھا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ واقعے میں ملوث ایک ڈاکو نامعلوم شہری کی فائرنگ سے مارا گیا۔ اس حوالے سے کامران منہاس کی رپورٹ۔ کراچی میں بے لگام ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ کورنگی ناصر جم کے قریب ڈکیتی کے دوران 20 سالہ عبدالباسط جان سے گیا۔ یہ واقعہ سامنے آیا ہوا تھا، شام کا ٹائم تھا۔ صحیح جو موبائل چھیننے کا کوشش کیا تھا، اس نے مزاحمت کیا تھا، تو جو اس کا دوسرا ساتھی تھا اس نے گولی چلایا اس کے اوپر۔ صحیح ہے، تو پتہ نہیں پولیس اتنا دیر بعد پولیس آیا تھا، جب ہاسپٹل گیا تھا پولیس، پھر بعد میں ادھر آیا تھا پولیس۔ واقعے کے بعد مسلح ملزمان نے کورنگی کراسنگ امان ٹاور کے قریب ایک اور شہری سے لوٹ مار کرنے کی کوشش کی تو شہریوں نے ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ نامعلوم شہری کی فائرنگ سے ایک ڈاکو مارا گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ ایس ایس پی کورنگی توحید الرحمان نے دعویٰ کیا کہ واقعے میں ملوث دونوں ڈاکوؤں سے مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ یہ عبدالباسط والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور ہم سب کو دکھ ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں جو دونوں ڈاکو ملوث تھے وہ پکڑے گئے اور اس میں ایک ایکسپائر ہوا ہے اور دوسرا بہت ہی شدید کریٹیکل کنڈیشن میں۔ عبدالباسط کے اہل خانہ کے مطابق مقتول 3 سال سے کراچی میں پرانے جوتوں کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ مقتول 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور اس کا آبائی تعلق کوئٹہ سے تھا۔ لواحقین مقتول کی لاش لے کر آبائی علاقے روانہ ہو گئے۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی ہے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ کامران منہاس، سٹی 21۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا 65 ارب روپے بجٹ بحال۔ وفاقی حکومت نے ایچ ای سی کا بجٹ 25 ارب کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اب وفاقی ادارہ صوبوں کی جامعات کو بھی معمول کے مطابق فنڈنگ کر سکے گا۔ وزارت خزانہ نے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ پلاننگ کمیشن نے ایچ ای سی کا ترقیاتی بجٹ 59 ارب روپے بھی بحال کر دیا۔ پلاننگ کمیشن کا بجٹ 21 ارب روپے کر دیا گیا۔ چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر مختار احمد نے بھی بجٹ بحالی کی نوید سنا دی۔ پریشان کن کیفیت آئی ہوئی تھی کہ جی فیڈرل لیول پہ ہماری یونیورسٹیوں کا بجٹ جو ہے، ایچ ای سی کا بجٹ جو ہے وہ کٹ ہو گیا ہے، اور جیسے یونیورسٹیوں نے بھی اس پہ اپنے کنسرن شو کیے، وائس چانسلر صاحبان نے بھی کیے، تو ہم نے امیڈیٹلی آنریبل پرائم منسٹر صاحب کے آفس کو اپروچ کیا، منسٹر فائنانس صاحب کو بھی ان کو کوئی لیٹر لکھا، اور سارے چیف منسٹر صاحبان کو بھی ریکویسٹ کی کہ یونیورسٹیوں کا بجٹ جو ہے وہ آلریڈی 2018 سے ایک کیپ ہوا ہوا ہے فیڈرل لیول سے جو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کاسٹ بڑھ گئی ہے اور ایسکیلیشن چیزوں کی ہو گئی ہے، تو اس میں سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہوگی کہ جو ہمارا 65 ارب روپے بجٹ تھا ریکرنگ کا 23-24 کا، اس کو ہمیں اگلے سال کی جو ایلوکیشن ملی تھی وہ 25 ارب روپے کی کر دی گئی تھی کہ ہم صرف فیڈرل یونیورسٹیوں کو سپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈیولپمنٹ میں بھی 59 بلین ہمارا بجٹ تھا پچھلے فائنینشیلی، جو آن گوئنگ فائنینشیل ایئر ہے اس کو بھی کٹ کر کے 21 بلین کر دیا گیا ہے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کی انٹرونشن سے، ان کی کوششوں سے ہم شکر گزار ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، اور منسٹر فائنانس اور باقی جن لوگ ساتھیوں نے اس میں ہمیں بہت ہیلپ کیا ہے۔ ہمارے منسٹر ایجوکیشن بھی تھے، منسٹر پلاننگ بھی تھے، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ، اور خاص کر سیکرٹری ہمارے ایجوکیشن کے، منسٹری آف ایجوکیشن سے، کہ سب کی ایفرٹ سے، اور جس میں وائس چانسلر نے بھی کوشش کی، ہمارے اساتذہ کرام نے بھی کوشش کی، اور جو ہمارے باقی لیڈرشپ ہے سب نے کوشش کی، پاکستان سے مختلف جماعتوں سے انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے، تو جس کے رسپانس پہ آج ہمیں خبر ملی ہے کہ ہمارا پچھلے سال کا جو بجٹ 65 بلین کا، اس پہ اگلے سال کے لیے بھی ریسٹور کر دیا گیا 65 بلین ریکرنگ۔ عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس 7 جون کو ہوگا۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جمعے کو محکمہ موسمیات کراچی آفس میں منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ اجلاس میں اسپارکو، وزارت مذہبی امور، محکمہ موسمیات سمیت دیگر نمائندگان شریک ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے عید الاضحیٰ 17 جون کو ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اور عید کی آمد ہے، شہر کے مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں لگنے والی پاکستان مویشی منڈی میں جانوروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ منڈی انتظامیہ کے مطابق جانوروں کے کم ہونے کی وجہ پولیس کی جانب سے تعاون کا نہ ہونا ہے۔
ताहा मलिक की रिपोर्ट। कोरंगी रोड पर मवेशी मंडी तो लग गई, मगर जानवरों की तादाद कम। मंडी इंतजामिया ने मंडी में कम मवेशी का जिम्मा पुलिस के साथ ताउन का ना होना करार दे दिया। मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर मुनाफ का कहना था कि हमारी तरफ से मंडी के इंतजाम मुकम्मल हैं। पुलिस और मुताल्लिका SHO की मुदाखलत से व्यापारी डर गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए हुए हैं। यहाँ पे व्यापारी तो हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे, मगर ये आए दिन पुलिस का तंग करना, व्यापारियों को यहाँ से बंदे उठा के ले जाना, थाने में जाके उसको रासा करना कि ये मंडी जो है गैर कानूनी है, हम ये करेंगे वो करेंगे। इंतजामिया का मजीद कहना था कि अगर व्यापारियों को परेशान ना किया जाए तो मंडी अब भी जानवरों से भर सकती है, जिसके बाद यहाँ खरीदार भी नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मंडी जो है ना ये भर जाती, ये तो कुर्बानी का माल है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको ख्याल करना चाहिए। ये अपनी मेहनत करते हैं, साल में एक महीना होता है कुर्बानी ईद का, इनको 4 पैसे मिल जाते हैं, इतनी दूर से आते हैं, मगर ये लोग नहीं सोचते कि भाई इन लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है। मंडी में मौजूद व्यापारी भी परेशान और कश्मकश की हालत में नजर आए। कैमरामैन हैदर के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। बल्दिया उस्मा कराची का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट इन एक्शन मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। आपको बताते चलें, बल्दिया उस्मा कराची का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट इन एक्शन है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से अपडेट के साथ। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर बल्दिया उस्मा कराची का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगाने वालों के खिलाफ नाइट ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आज से आगाज कर दिया गया है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत का कहना है कि सड़कों पर रात को जानवर लाकर फरोख्त किए जाने की शिकायत थी। सड़कों पर जानवर फरोख्त करने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। गैर कानूनी मवेशी मंडी लगाने वालों के खिलाफ आज से जो है एंटी इंक्रोचमेंट ने बाकायदा तौर पर नाइट ऑपरेशन का आगाज किया है, जिसके पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल प्याला होटल के करीब गैर कानूनी मवेशी मंडी लगाने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के दौरान जो है फुटपाथों पर रखा चारा व दीगर सामान भी हटाया गया है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत का कहना है कि कैफे प्याला से लेकर वाटर पंप तक इंक्रोचमेंट की कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। सड़कों पर जानवर बेचने वालों और सामान रखने वालों को हटाकर फुटपाथ को भी क्लियर कराया गया है। उनका कहना था कि एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन के लिए पुलिस की मदद भी जो है हासिल की गई है। किसी भी शख्स को शहर में गैर कानूनी मवेशी मंडी लगाने की इजाजत जो है हरगिज नहीं दी जाएगी। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया। नाकिस तामीर या करप्शन की कारस्तानी, गुलिस्तान जौहर चौरंगी पर तामीर किया जाने वाला अंडरपास 1 साल में ही टूट फूट का शिकार हो गया। ऐसा नबासी की रिपोर्ट। नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, गुलिस्तान जौहर का अंडरपास तबाह हाल, शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनने लगा। अंडरपास में पेवर ब्लॉक्स के इस्तेमाल का तजुर्बा नाकाम, 1 साल में टूट फूट का शिकार। टूटे अंडरपास में लगने वाले पेवर ब्लॉक्स की दुरुस्त इंटरलॉकिंग न होने से मंसूबे को पायदारी न मिल सकी, जिसके बायस एक बार फिर से मुरम्मत का काम शुरू किया गया। यहाँ पर हैवी जो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए हरगिज़ नहीं होता। यहाँ पर तो आप कराची में आप देखें कि हैवी व्हीकल्स इस्तेमाल करते वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये टोटली फेल है। मोस्टली ये फुटपाथ्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पर बनाए जाते हैं, या कॉर्टयार्ड्स में वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं है, आप ये देखें कोई भी जॉइंट नहीं है, ये फेल है मुकम्मल। और इस तरह के इन्होंने पेवर्स इस्तेमाल किए हैं, ये देखें, तो ये तो टोटली फेल है। अगर मैं इसकी अभी स्ट्रेंथ चेक करूं तो ये कोलैप्स है। ईद से कबल अंडरपास के दोनों ट्रैक की मुरम्मत का काम मुकम्मल करके अंडरपास को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। महंगाई से सताए अवाम को एक और झटका, सार्फिन बिजली बिलों की किस्त पर अदायगी के रिलीफ से महरूम। नेपरा ने बिजली सार्फिन के लिए बिलों की किस्त कराने की सहूलत महदूद कर दी। बिजली सार्फिन अब साल में सिर्फ 1 दफ़ा ही बिजली बिल की किस्त करा सकेंगे।
नेपरा ने फैलाया महंगाई का जाल, बिजली का बिल अदा करना भी हुआ महाल। सार्फिन बिजली बिलों की किस्तवार अदायगी के रिलीफ से महरूम हो गए। नेपरा ने बिजली सार्फिन के लिए बिलों की किस्त कराने की सहूलियत महदूद कर दी। बिजली सार्फिन अब साल में सिर्फ एक ही दफा बिजली बिल की किस्त करा सकेंगे। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम कर दी। नेपरा की जानिब से तमाम बिजली कंपनियों को अहकामात जारी कर दिए गए। नेपरा के मुताबिक किस्त कराने की सूरत में नया बिल कंप्यूटराइज्ड बिल में जारी किया जाएगा। आखिरी दिन सरकारी छुट्टी की सूरत में मुकर्रर तारीख में तौसी न करने की भी हिदायत कर दी गई। सरकारी छुट्टी के बायस बिल अदम अदायगी पर सार्फिन से लेट पेमेंट सरचार्ज लिए जाएंगे। नेपरा के फैसले को सियासी जमातों और सिंध असेंबली के मेंबरान ने अवाम दुश्मन फैसला करार दे दिया। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक, पीपल्स पार्टी की मेंबर सूबाई असेंबली सादिया जावेद, MQM के रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीक और मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल ने फैसले को मुस्तरद कर दिया और कहा कि नेपरा के इस फैसले से महंगाई से सताए अवाम मजीद मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये समझता हूँ कि ये किसी एक अकेले इदारे का मसला नहीं है, ये एक माइंडसेट का मसला है कि जिसमें वो माइंडसेट आवाम की फलाह बहबूद और आवाम की सहूलत इसका ख्याल करने के लिए बिल्कुल भी अपने आप को तैयार नहीं पाता। इस इक़दाम की मैं भरपूर मज़म्मत करती हूँ और फेडरल गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे मिनिस्टर फॉर एनर्जी मेरा ख्याल से लगारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को वो देखें, इस पे वो नोटिस लें, क्योंकि देखें इस वक्त तो लोगों को कमा के खाना मसला हुआ है, बच्चों को पढ़ाना मसला हुआ है। मुझे तो आज बड़ा अफसोस है कि नेपरा के ऊपर कि उन्होंने कंज्यूमर सर्विसेज जो मैनुअल है उसको जो तरमीम की है उसके अंदर इंतहाई जो है वो काबिल मजम्मत है। जमात इस्लामी से मजम्मत करती है। दीगर सियासी जमातों ने भी नेपरा के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सिंध में पोलियो वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। सिंध भर में माहौलियाती नमूनों से पोलियो वायरस की तस्दीक। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध के कोऑर्डिनेटर इरशाद अली सोधर कहते हैं वालिदैन को अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। मीर कैरियो की रिपोर्ट। पोलियो की सरहद पार से आमद, शहर कायद में खतरे की घंटी बज गई। सिंध के मुख्तलिफ इजला बशमूल कराची के साउथ, कोरंगी, मलीर और दीगर इजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध के कोऑर्डिनेटर इरशाद अली सोडर कहते हैं गुज़श्ता साल सितंबर में पोलियो वायरस की क्रॉस बॉर्डर मुंतकली हुई। क्रॉस बॉर्डर वायरस की मुंतकली अफगानिस्तान से हुई थी। कराची के तमाम इजला की माहौलियाती नमूने में वायरस की तस्दीक हुई है। पिछले साल सितंबर से जो है हमारे पास एक पोलियो की इम्पोर्टेशन हुई, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं अफ़गानिस्तान से, क्योंकि उससे पहले कोई 2-2.5 साल जो है वो सिंध में पोलियो की ट्रांसमिशन वायरस की जो है वो रुकी हुई थी। लेकिन ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन की वजह से हमारे पास एक अभी आप कह सकते हैं कि आउटब्रेक हुई, क्योंकि कराची के तमाम अजला में सैंपल्स जो है वो एनवायरनमेंट के जो हम सीवेज से सैंपल्स लेते हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इरशाद अली सोडर ने तफसील बताते हुए कहा कि सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता रोज से एक हफ्ते के लिए पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम शुरू की गई है। कराची से पॉपुलेशन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। बाकी शहरों में, सिंध में और बाकी सूबों में तो हम देखते हैं कि वो वायरस जो है हमें सखर में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, जैकबाबाद में भी जो है वो मिला है। इरशाद अली सोडर ने कहा कि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। कराची के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी की जरूरत होती है। इरशाद अली सोडर का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर तावन कर रहे हैं। वालिदैन कुछ गलत फहमियों की वजह से बच्चों को कतरे नहीं पिलाते। ऐसी सूरत हाल में वायरस फैलने का खदशा होता है। इरशाद अली सोडर का कहना था कि पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाना हमारा कौमी फरीजा है। उससे हम अपने मुस्तकबिल की नस्ल को मादूरी से महफूज रख सकते हैं। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मीर कीरियो, कराची। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी का दौरा हैदराबाद मुकम्मल। गवर्नर सिंध एक रोज़ा दौरा हैदराबाद मुकम्मल करके कराची वापस पहुंच गए। गवर्नर सिंध ने हैदराबाद में फरीदाबाद सानहे में शहीद और जख्मियों के 60 खानदानों में कैश रकम तकसीम की। हैदराबाद IT कोर्स के टेस्ट मुनक़िद किए जाने का ऐलान भी किया। सैयद उबैर राशिद हमारे साथ हैं, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखें गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी का दौरा हैदराबाद मुकम्मल हो चुका है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी एक रोजा दौरा हैदराबाद मुकम्मल करके कराची वापस पहुंच चुके हैं। गवर्नर सिंध के दौरे हैदराबाद के मुकम्मल तफसीलात सिटी 21 न्यूज से हासिल कर ली है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने सानिया फरीदाबाद के जाए हादसा का दौरा किया। गवर्नर सिंध ने सानिया से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने सिविल अस्पताल हैदराबाद का भी दौरा किया। सानिया फरीदाबाद के जख्मियों की आयादत की और डॉक्टरों से उन्हें फराहम की जाने वाले इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। कामरान टिसूरी ने सानिया में जाबहाक लवाकिन से मुलाकात की और ज़ाहिर ताज़ियत की। लवाकिन से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि तमाम इराकीन असम्बली मुतासरीन के साथ खड़ी है। गवर्नर सिंध ने हैदराबाद में फरीदाबाद सानिया में शहीद और जख्मियों के 60 खानदानों में कैश भी रकम दी। जेल खाना जात में तरक्की पाने वालों के लिए तकरीब इशाइये में सूबाई वज़ीर और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। IG जेल काजी नज़ीर अहमद के दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर और IG जेल ने हाल ही में प्रमोट हुए जूनियर प्रिजन अफसरान को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में 6 ऑफिस सुपरिटेंडेंट, 27 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 115 हेड कांस्टेबल्स को तरक्की मिलने पर मदऊ किया गया। सिंध में साइंस एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की अहम काविश। आइंदा तालीमी साल को साइंसी तालीम के अहमियत के तौर पर मनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत महकमा तालीम और स्टीम वर्किंग ग्रुप्स का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि साइंस इन सिंध के उन्वान से आगाही मुहिम चलाई जाएगी। नाजरीन, सेहतमंद माहौल सेहतमंद मुआशरे की ज़मानत होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जाएगा। माहौलियात का दिन मनाने का मकसद माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतल्लिक शऊर व आगाही पैदा करना है। नम्रा रियासत की रिपोर्ट। गर्मी की लहरों, खुशहाली, सैलाब, वबाई अमराज, आलूदा हवा और प्लास्टिक में घिरे इस समंदर को देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इंसान ने ही इस कुराए अर्ज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। मुस्तकबिल में इन नुकसानात से बचने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? आइए। शदीद गर्मी, खुश्क साली, सैलाब, जंगल की आग, वबाई अमराज, खौफनाक माहौलियाती तब्दीलियाँ, ये सब हैं आलूदा माहौल के असरात। इस माहौल को कैसे इंसान दोस्त बनाना है, आज का दिन इसी का मकसद उजागर करता है। पाकिस्तान में तेजी से होती मौसमियाती तब्दीलियों के मद्देनजर हर दिन माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है, लेकिन हर साल इसे मजीद नुमाया करने के लिए इज्तमाही तौर पर 5 जून को दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जाता है। माहिर माहौलियात सलीम जमान के मुताबिक जंगलात की कटाई, ज़रई ज़मीन की जगह हाउसिंग सोसाइटियों के क़याम और पेट्रोलियम मसनूआत के बेदरीग इस्तेमाल, बड़े शहरों में गाड़ियों की तादाद में होशरबा इजाफा और इससे निकलने वाला धुआं माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रहा है। व्हीकुलर पॉल्यूशन की वजह से जो इस वक्त आलूदगी हो रही है वो इस वक्त काफ़ी सिग्निफिकेंट। दूसरी ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सफाई सुथराई का उतना अच्छा निज़ाम नहीं है। यहाँ पे डस्ट पोल्यूशन आपकी बहुत है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की, जो आपका जो मरीन है, आपकी जो सी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एफिल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं करते जो कि प्रॉपर कैपेसिटी पे ऑपरेट करें। माहिरीन के मुताबिक शजरकारी और अवामी मकामात पर सफाई का ख्याल रखकर ही मुस्तकबिल में आलूदगी से पैदा होने वाले खतरात से बचा जा सकता है। जब हम दरख्त लगाने की बात करते हैं तो सिर्फ दरख्त लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दरख्त लगाने के बाद दरख्त की परवरिश करना वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। दरख्त भी बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। जब आप उसको दरख्त को लगाएं तो इस बात की यकीन दहानी करें कि दरख्त जब तक एक सर्टन लेवल पे ना पहुंच जाए आप उसकी देखभाल ना छोड़ें। कचरा फेंकना एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि जुर्म है। जो हम इसका इंतज़ार ना करें कि हुकूमत आएगी और हमें आके सज़ा देगी तो हम इस चीज़ से बाज आएंगे। हम ज़ाती कैपेसिटी में कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं हम वो पोल्यूशन बंद करें। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात काफ़ी नुमाया दिखाई दे रहे हैं, जो मौसमों में यकलख्त और गैर यकीनी तब्दीलियों का सबब बन रहे हैं। ज़मीन इंसानियत का वाहिद घर है और इसके नुकसानात का अजाला करने के लिए अभी देर नहीं हुई है। माहौलियात के लिए शहरी फैसले करके सरसब्ज मुस्तकबिल की मुंतकिली में हिस्सा डालकर और माहौल दोस्त पॉलिसियाँ अपना कर हम बेहतर पायदार फितरी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। कैमरामैन राना जानजेब के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21।